Good afternoon, students. My voice is audible. Hello. Okay. Today we discuss the such type of contents. Okay. Today we generally discuss about the functions. Okay. What is the function in C? What is the requirement of the function in C? What is the concept of prototype? Different types of functions. Okay. Different way to implement a function. Next is the concept of actual parameter and formal parameter. Okay. So basically, we start our session from the introduction of a function. Okay. What is function? Basically, function is a collection of instruction that is used to perform any specific task. It may be written in a low level language, high level language, or middle level language. Okay. Uh, and it always returns a value. It does not returns a single value only. It can also returns more than one value in case of a pointer. Okay. Second is what is the need of the function. Okay. Basically, when we use the function, it use the concept of the modularization. Okay. What do you mean by modularization? Basically, modularization is the concept where we divide a complex task into different subtasks, where each uh, task works independently. Okay, this is the use of the function. And what is the concept behind use of the function? Okay. uh, अगर आपको स्टार्टिंग में याद होगा तो मैंने बताया था आपको सी इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच. ओके, तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच मींस वी वर्क्स ऑन द डिवाइड एंड कॉन्कर रूल. ओके, दैट मीन्स कि हम एक बड़े कॉम्प्लेक्स टास्क को छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड करते हैं. दैट मीन्स कि software is a collection of different modules. Okay, software is a collection of different modules indicates the function, and each function is associated with a specific work. Okay, तो बेसिकली जितने भी बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं उसके अंदर में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ये पूरी प्रोजेक्ट को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिफाइन करते हैं. और जो मॉड्यूल्स का जो डिवीजन होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनैलिटी. डिफरेंट फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फंक्शंस को या मॉड्यूल्स को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोटाइप. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोटोटाइप? बेसिकली prototype of the function is just like a declaration of the function. Okay, declaration of the function. That means ki when we declare a variable like int a, in the same way we can also declare a function, and this declaration of the function is known as the prototype. Okay, next is the types of a function. What is the different types of the function? Basically, function is there are two types of function. One is the library function and second is the user defined function. Okay, uh, function means what? Library function means that is already defined in a header files. Okay, suppose studio.h and conio.h, mat.h, these are the header files. And conio.h consists clear screen function, get ch function. So clear screen and get ch function is known as the library function. Okay, that is not created by the user itself. It is created by the already created in the library. Okay, so this is the concept of the library function. Next is the user defined function. Okay, this is the function that is created by the user itself as per the requirement. Okay, that means कि कस्टमर को जिस तरीके का रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग अगर हम कोई अलग तरीके का फंक्शन यूज कर रहे हैं या डेवलप कर रहा है कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो उसको हम बेसिकली क्या करते बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन. दैट मीन्स कि दैट द फंक्शन दैट इज क्रिएटेड बाय द यूजर इटसेल्फ एज पर द रिक्वायरमेंट. जो यूजर के रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है और जिसको यूजर ने खुद बनाया है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस बोलते हैं. ठीक है, इसके बाद है जो नेक्स्ट है डिफरेंट वे टू इम्प्लीमेंट ए फंक्शन. फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं? बेसिकली 4 वेज होते हैं इम्प्लीमेंटेशन के फंक्शंस को, जिसको हम लोग अभी देखेंगे प्रैक्टिकल सेशन में. नेक्स्ट है आपका व्हाट इज मीन बाय कॉन्सेप्ट ऑफ एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर. इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग इसमें प्रैक्टिकल करेंगे. ओके, now we go to the PPT that will better understanding about the functions. Okay,
F5. Okay. What is a function? We can see there are different points that have been mentioned in the slides. Basically, a large program in C can be divided to many subprogram. Okay. Already I discussed about this. Okay. Subprogram is called as a function. Basically, a job of function is to do something. Okay. Now C program contains at least one function, which is the main. As you know that any C program consists only one single main function, and the execution of the program is started from the main function. Okay. Classification of function: user defined function, library function. These are the example: user defined functions, main, library function, printf, scanf. So okay. Advantages of function: what is the advantages of using the function? Okay. Basically, it is a much easier to write a structured program. We already discussed about what do you mean by the structured programming approach. Okay, that is works on the divide and conquer rule. Okay, where a large program can be decomposed into a smaller. Okay, allowing the code to be called many. Basically, it is the most important advantage of a function. सपोज अगर हमने किसी एक मॉड्यूल अगर यूज किया है, हमने एक मॉड्यूल सपोज कीजिए हमने एक एडिशन के लिए अगर हमने एक फंक्शन बनाया है, तो दैट मीन्स कि अगर एक बार हमने फंक्शन बना लिया तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मेनी टाइम्स यूज कर सकते हैं. दैट मीन्स की फंक्शन वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ओरा, WORA, यानी राइट वंस एंड यूज मेनी टाइम्स. ठीक है, write once and use many times. Okay, so this concept will be used in the function. Okay, now times easier to read and update. That means कि अगर हमें फंक्शन में कोई भी चेंज करना होगा, ठीक है, तो हम अगर किसी भी टाइम में चाहें तो उसको चेंज एंड अपडेट कर सकते हैं. ओके, इट इज इजियर टू डिबग ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम. जब हम क्या करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में अगर हम डिकम्पोज करते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम सिस्टम को प्रोग्राम को अगर प्रोग्राम के अंदर में कोई एरर आता है तो उसको डिबग करना. डिबगिंग इज द कॉन्सेप्ट. व्हाट इज डू मीन बाय डिबगिंग? डिबगिंग इज द अप्रोच वेयर वी ट्राई टू फाइंड रिमूव अ एरर. ओके, जहाँ पे कोई एरर आ रहा है उसको अगर हम रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द डिबगिंग. ओके, now this is the function declaration. How can we use the function? Okay, how to function works. Okay, call function, calling function. We already function prototypes. We already discussed in the beginning of the session. Okay, now we come to the practical session. Okay. Okay. First of all, function. Someone waiting? Hello? A screen is visible? Yes, sir. Okay. कोई रिक्वेस्ट अगर सेंड अगर कर रहा है तो काइंडली आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा. ओके, फंक्शन इट इज अ collection of instructions written in a low level, middle level or high level programming. Okay, programming, it always returns one value or more than one value in case of pointer. Okay, देखिए मैंने यहाँ पे ये चीज जो लिखा है,
इट ऑलवेज, यहाँ से इट ऑलवेज रिटर्न्स वन वैल्यू और मोर देन वन वैल्यू इन केस ऑफ द पॉइंटर। जब भी आप लोग बुक पढ़ते हैं तो बुक के अंदर में एक चीज जो लिखा होता है वो क्या है कि जनरली की फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू। अ वैल्यू का मतलब ऐसा नहीं है आप समझिए कि सिर्फ एक ही वैल्यू वो रिटर्न करेगा, वो मोर देन वन वैल्यू भी रिटर्न करता है। कब? जब हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? जब हम लोग पॉइंटर यूज करेंगे, ठीक है ना। तो जब हम लोग पॉइंटर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये बताएंगे कि पॉइंटर के केस में हम किस तरीके से वैल्यू को क्या करते हैं, मोर देन वन वैल्यू को रिटर्न कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन टाइप, ठीक है। टाइप कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो है वो है प्री डिफाइंड फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शन, ओके। और दूसरा क्या है? यूजर डिफाइंड फंक्शन। दो तरीके के फंक्शंस यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। अब प्री डिफाइंड फंक्शंस में क्या क्या आ जाएगा? प्री डिफाइंड फंक्शन में जैसे printf यूज करते हैं ना हम लोग, scanf यूज करते हैं, दीज आर द फंक्शंस जो कि हेडर फाइल्स के अंदर में है। getch यूज कर सकते हैं, ठीक है, getch। नेक्स्ट यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने डिले यूज किया है प्रोग्राम्स के अंदर में, वो हो सकता है, ठीक है। exit यूज किया है, दैट इज ऑल्सो ये प्री डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब ये है दैट इज क्रिएटेड बाय द यूजर इटसेल्फ। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई सम नाम का फंक्शन बना दिया, ठीक है, तो ये क्या किस तरीके का फंक्शन होगा? यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया। सपोज कीजिए हमने कोई प्रिंट नाम का कोई फंक्शन बना दिया, इट विल बी ऑल्सो ए यूजर डिफाइंड फंक्शन, ओके। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्री डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन, ओके। नेक्स्ट, इसके बाद बेसिकली हम लोग ये पता करते हैं कि यहाँ पे फंक्शन, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ द फंक्शन, ओके। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने जो फंक्शन यूज किया है void main, ओके, तो इट इज ऑल्सो ए यूजर डिफाइंड फंक्शन, ओके। बेसिकली एनी फंक्शन, यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। और ये चीज ये ध्यान रखिए कि जो फंक्शन होता है बेसिकली फंक्शन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एड्रेस। जैसे वेरिएबल का हम लोग फिजिकल एड्रेस निकालते हैं, उसी तरीके से फंक्शन को भी एक मेमोरी मिलती है, उसका एड्रेस आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। इसको प्रोग्राम्स में हम लोग देख भी सकते हैं प्रैक्टिकली, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन या बोल सकते हैं। इसके अंदर में क्या हो सकता है? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डेटा टाइप, ठीक है, डेटा टाइप सबसे पहले डेटा टाइप, ओके। देन नेम ऑफ फंक्शन, ओके। इसके बाद यहाँ पे पैरामीटर्स, ओके। तो डेटा टाइप जो हो सकता है क्या हो सकता है? इट मे बी इंट, इट मे बी फ्लोट, इट मे बी कैर, ओके, इस तरीके से। नेम ऑफ फंक्शन, इट शुड बी ए वैलिड आइडेंटिफायर, ओके। नेम ऑफ द फंक्शन क्या होगा? जैसे वेरिएबल, जैसे मान लीजिए ABC लिख दिया, ठीक है, या कोई सपोज कीजिए यहाँ पे सम लिख दिया, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन। पैरामीटर्स के अंदर में मोर देन वन पैरामीटर्स हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि इंट ए भी लिख सकते हैं, साथ में फ्लोट बी भी लिख सकते हैं, साथ में कैरेक्टर सी भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि पैरामीटर्स आपके बहुत सारे हो सकते हैं, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि पैरामीटर्स का जो डेटा टाइप होगा वो सिमिलर होगा, डेटा टाइप आपका डिफरेंट भी हो सकता है। दैट मीन्स कि एनी फंक्शन कंसिस्ट सिंगल पैरामीटर, मल्टीपल मैटर पैरामीटर, ओके, और नो पैरामीटर्स, इस तरीके का भी है। दैट मीन्स कि वैसा कोई फंक्शन जिसके अंदर में पैरामीटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और अगर होगा तो सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स में, एग्जांपल सपोज कीजिए यहाँ पे लिखते हैं void, ओके, यहाँ पे लिख दिया sum, ओके, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हमने, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं int sum, और यहाँ पे लिख दिया int, और यहाँ पे लिख दिया int, ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। फिर लिख दिया int, यहाँ पे लिख दिया sum, और यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा void, उसके बाद sum, ओके, लिख दिया int, और यहाँ पे लिख दिया। दैट मींस कि एक फंक्शन क्या है, नेम में फंक्शन, लेकिन जो इंप्लीमेंट
तरीका है वो क्या है, सारा अलग है। पहला जो फंक्शन है इसको हम क्या बोल सकते हैं, द फंक्शन हैविंग नो पैरामीटर, ओके, फंक्शन हैविंग नो पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर भी नहीं है ना इसके पास, ठीक है, एंड नो रिटर्न टाइप, एंड नो रिटर्न टाइप। यहाँ पे जो है रिटर्न टाइप जो है वो क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना void sum, तो सम के आगे लिखा हुआ है void, तो void का मतलब होता है नथिंग, इसका मतलब ये कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है ना। इसका इम्प्लीमेंटेशन भी बताएंगे अभी। ये जो फंक्शन है इसके अंदर में आप देख रहे होंगे द फंक्शन हैविंग पैरामीटर्स हैं, कितने पैरामीटर्स हैं, 2 हैं, ठीक है, और रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है, तो इसको बोल सकते हैं द फंक्शन having parameter and return type, ठीक है ना, रिटर्न टाइप भी है। थर्ड जो है इसमें क्या है, इसके अंदर में किस तरीके का फंक्शन है, इसके अंदर में पैरामीटर तो नहीं है लेकिन रिटर्न टाइप है, तो क्या लिखेंगे, द फंक्शन हैविंग रिटर्न टाइप बट नो पैरामीटर, ओके, ठीक है। लास्ट जो हमारा फंक्शन है इसके अंदर में क्या देख रहे हैं आप, रिटर्न टाइप क्या है, नहीं है कुछ, नथिंग है, दैट मीन्स की द फंक्शन हैविंग नो रिटर्न टाइप बट हैविंग द पैरामीटर, ओके। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने एक ही फंक्शंस को, यहाँ पे नेम तो फंक्शन का सेम है, लेकिन क्या है कि ये जो फंक्शन है सारे फंक्शन का सिर्फ नेम सेम है, लेकिन एक तरीके से देखें तो किसी में रिटर्न टाइप है, किसी में रिटर्न टाइप नहीं है, किसी में अरेंजमेंट ऑफ पैरामीटर्स के नाम पे कुछ दिया हुआ है और किसी में पैरामीटर्स के में कुछ नहीं दिया हुआ है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो फंक्शंस है, ये यहाँ पे जो सम फंक्शन है, 1 2 4 फंक्शंस यहाँ पे हमने डिराइव किया है, नाम सेम है लेकिन इसका जो किसी का रिटर्न टाइप अलग है, किसी का, दैट मीन्स कि all of the 4 different functions are different to each other, that means कि जितने भी ये functions हैं यहाँ पे ये देखना है कि सिर्फ नाम सेम होने से कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं, सपोज कीजिए कि किसी का नाम है राकेश, ठीक है, अब किसी को हम बोल सकते हैं किसी का नाम है राकेश कुमार सिंह, किसी का नाम है राकेश कुमार वर्मा, ठीक है, किसी का नाम है राकेश कुमार महतो, इस तरीके से अगर दे रहे हैं तो दैट मीन्स कि राकेश तो सबके नाम है लेकिन टाइटल सबका चेंज है, दैट मीन्स कि इट इंडिकेट्स दे आर द 3 डिफरेंट पर्संस, ओके। उसी तरीके से यहाँ पे फंक्शंस को भी हम क्या कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रिटर्न टाइप डिफरेंशिएट कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंशिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि एक लिखा है void sum, यहाँ पे लिख दिया int a और यहाँ पे लिख दिया फ्लोट b, ठीक है, 2 पैरामीटर पास किया हुआ है। एक दूसरा फंक्शन बना रहे हैं void sum, यहाँ पे लिख दिया हमने फ्लोट a और int b। अगर हम इन दोनों फंक्शन की बात करें तो ये दोनों फंक्शन जो है जिनका नाम तो सेम है, रिटर्न टाइप भी सेम है, लेकिन जो अरेंजमेंट ऑफ द पैरामीटर्स है वो क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब ये जो दोनों फंक्शंस हैं वो क्या है, आपस में डिफरेंट है। क्लियर है। तो ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, मैंने ये 4 अलग अलग तरीके के जो इम्प्लीमेंटेशन बताए, यही आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब आपको ये आपके पास चारों ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, इन चारों के थ्रू हम कोई भी फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब जो हमारा नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग बेसिकली फंक्शन बनाते कैसे हैं, हाउ टू डिक्लेयर ए फंक्शन एंड हाउ टू यूज ए फंक्शन, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, सपोज कि इसको एक बार कट कर देते हैं, ओके। नाउ stdio.h, ओके। अब यहाँ पे सपोज कीजिए कि एक हम फंक्शन बनाना है मुझे, ठीक है। तो सपोज कीजिए एक फंक्शन हम बना रहे हैं void sum के नाम से फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। इसी में ऐड करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे void sum, यहाँ पे लिखेंगे int a
बी, सबसे पहले एक काम करते हैं, फंक्शन बना देते हैं पहले, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे फंक्शन, कभी भी जो फंक्शन हम बनाते हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, फंक्शन विल बी ऑलवेज डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ द मेन फंक्शन। हमेशा जो मेन फंक्शन होगा उससे क्या करेंगे, उसको बाहर नहीं हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं। या तो मेन के ऊपर हम फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं, उसकी बॉडी को डिफाइन कर सकते हैं, या मेन के नीचे। अब ये दोनों भी कॉन्सेप्ट हम बताएंगे कि मेन के ऊपर कब करेंगे और मेन के नीचे कब करेंगे। जनरली क्या होता है कि जब हम लोग बनाते हैं फंक्शंस, तो बुक्स के भी अंदर में क्या होता है कि जो भी हमारा मेन फंक्शन होता है उसके टॉप में, मेन के ऊपर ही, दैट मीन्स की हेडर फाइल और मेन के बीच में ही हम जनरली फंक्शन डिफाइन करते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट उस चीज को फॉलो भी करते हैं, लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि नहीं मेन के फंक्शन, अगर मेन के नीचे अगर हम, यानी मेन के जहाँ पे मेन एंड हो रहा है उसके बाद अगर हम फंक्शन डिक्लेयर करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, तब थोड़ा सा आपको ये प्रॉब्लम होगा कि क्योंकि आपने उसको किया नहीं है। तो देन हम लोग इसको प्रोग्राम में देखेंगे। सबसे पहले मैं ऊपर ही डिक्लेयर कर रहा हूँ फंक्शन को। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं void मेन, क्योंकि देखिए कभी भी जो फंक्शन हम कॉल करेंगे दैट विल बी फ्रॉम द मेन, क्योंकि मेन के अंदर में ही हम फंक्शन को सबसे पहले वहां पे डिक्लेयर करेंगे और देन वो क्या करेगा, वो कॉल करेगा वहां से। ओके, तो यहाँ पे सिंपली सपोज कीजिए कि यहाँ पे लिख रहे हैं क्लियर स्क्रीन, और यहाँ पे एक फंक्शन हम बना रहे हैं, किस नाम से, सम नाम का फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर में आप देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है हमारा सम, इट कंसिस्ट नो एनी पैरामीटर, यहाँ पे लिखते हैं इट कंसिस्ट no any parameter and, ठीक है ना, कोई पैरामीटर नहीं है। तो अगर यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है, तो अगर मान लीजिए कि हमें 2 नंबर का सम करना है, तो यहाँ से बेसिकली अगर पैरामीटर नहीं जा रहा है तो दैट मीन्स कि हमें तो वैल्यू तो लेना पड़ेगा ना, ठीक है। तो वो वैल्यू कहाँ पे हम लेंगे, जहाँ पे हम फंक्शन को, यहाँ पे फंक्शन की बॉडी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉलिंग, कॉल फंक्शन, इसको बोलते हैं कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो लिख देते हैं यहाँ पे, सपोज कीजिए, अब सिंपली जो सम का कोड है वही यहाँ पे डिराइव कर देंगे, इंट ए बी, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट एफ स्लैश एन एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, दोनों वैल्यू इनपुट कर दिया यहाँ पे। ओके, वैल्यू को रीड करा लेते हैं। सेम प्रोसेस है जैसे प्रोग्रामिंग करते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी परसेंट डी। ओके, अब यहाँ पे लिखते हैं रेफरेंस ऑफ ए एंड रेफरेंस ऑफ बी। ओके, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सम कराना है तो यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिख दिया स्लैश एन सम इक्वल टू %3d, और यहाँ लिख सकते हैं a प्लस बी। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे जो ये फंक्शन की बॉडी है, दिस इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से हमने फंक्शन को कॉल किया। जब भी फंक्शन को हम कॉल करेंगे हमेशा वो किसके अंदर से कॉल होगा, मेन के अंदर में, ठीक है। ये जो फंक्शन है इसके अंदर में क्या है, कोई पैरामीटर नहीं है ना, तो पैरामीटर जब नहीं जाएगा यहाँ पे, तो बेसिकली हमें जो भी वर्क करना होगा उसके लिए तो हमें वेरिएबल चाहिए ना, डेटा चाहिए। तो डेटा तो आपको यहाँ मिला नहीं है, तब वो डेटा अगर आपके पास नहीं है तो दैट मीन्स कि डेटा आपके पास कैसे जाएगा, दैट विल बी इन द टर्म एज अ पैरामीटर, पैरामीटर के रूप में आपके पास डेटा जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं किया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहीं पे यूजर से डेटा ले लेंगे और वहां पे सम करा लेंगे, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये किस तरीके का फंक्शन हो गया, द फंक्शन हैविंग नो एनी पैरामीटर एंड ऑल्सो, एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, ऑल्सो हैविंग नो एनी रिटर्न टाइप। अगर जहां पे भी रिटर्न टाइप void लिखा हुआ है, इसका मतलब रिजल्ट को हम यहीं पे डिस्प्ले करा देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है ना प्रिंट एफ सम इक्वल टू %3d a प्लस बी, तो दैट मीन्स कि रिजल्ट हमारा यहीं पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ओके, कंपाइल कराते हैं, फाइल नाउ रन, ठीक है। इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, सपोज कीजिए 8 दे दिया और यहाँ पे 9 आ गया, वैल्यू 17। ओके, अब यहाँ पे सपोज कीजिए इसी फंक्शन को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कट करते हैं एक बार और इसको मेन के नीचे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। ये चीज मैंने अभी बताया था ना आपको कि जनरली क्या होता है, मेन के ऊपर ही डिफाइन करते हैं हम लोग, लेकिन अगर मेन के नीचे फंक्शन बनाते हैं तो क्या आता है। ओके, और इसको एक बार फिर कंपाइल करते हैं, कंपाइल
आगे यहाँ पे क्या कह रहा है, ओके और सी कंपाइल आ रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, सम शुड हैव ए प्रोटोटाइप, बोल रहा है ना, सम शुड हैव ए प्रोटोटाइप। बेसिकली ये जो एरर है वो क्यों आ रहा है, ये चीज ध्यान रखिए। यहाँ पे कह रहा है सम शुड हैव ए प्रोटोटाइप। मैंने आपको बताया था कि जनरली जो सी प्रोग्रामिंग है वो कैसे चलता है, पहले यहाँ पे लिखते हैं टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम का। कैसे होता है, टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम जब हो रहा है तो आपका प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेन से। मेन के अंदर में क्लियर स्क्रीन गया, यहाँ पे सम है। तो बेसिकली सम जो यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन, उस फंक्शन के बारे में कंपाइलर को पता नहीं है ना पहले से, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो टॉप टू बॉटम चल रहा है यहाँ से। तो दैट मीन्स कि अगर हमें सम को यहाँ पे लिखा है हमने, तो दैट मीन्स कि इट शुड बी डिक्लेयर्ड। दैट मीन्स कि कंपाइलर को आपको पहले बताना पड़ेगा कि सम नाम का फंक्शन है, ओके। तो यहाँ पे लेकिन आपने क्या किया है, मेन के नीचे डिफाइन कर दिया है, लेकिन मेन के ऊपर जब आपने डिफाइन किया था ये वॉइड सम की बॉडी को, जब आपने ऊपर लिखा था उस केस में ये एरर शो नहीं कर रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही मेन के नीचे आपने लाया, वो क्या कह रहा है कि सम शुड हैव ए प्रोटोटाइप, यानी सम को आपको डिक्लेयर आपने नहीं किया है, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज, यहाँ पे अगर इस एरर को हमें रिमूव करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको डिक्लेयर करना होगा किसको, फंक्शन को। तो फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करेंगे, देखिए ऊपर में लिखेंगे फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, फंक्शन का नाम क्या है, सम, और पैरामीटर कुछ नहीं है यहाँ पे, यानी लिख देंगे वॉइड सम इस तरीके से, ओके। जब ये जैसे ही हम लिखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिक्लेरेशन, है ना, और इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोटोटाइप, ओके, डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइप, क्लियर। अब यहाँ पे आप कंपाइल कराएंगे, ओके, देख रहे हैं ना, वार्निंग 0 भी हो गया और एरर भी 0 हो गया, ओके। नाउ रन हो गया, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, देन 8 एंड 7 दैट इज द 15, क्लियर है। तो यहाँ आपको ये समझ में आ गया कि जब भी हमारा फंक्शन होगा, फंक्शन अगर ऊपर हम टॉप में अगर बनाते हैं मेन के ऊपर में तो कोई एरर शो नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही हम मेन के नीचे अगर बना रहे हैं तो वो एरर शो करेगा, और उस एरर को रिमूव करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डिक्लेयर द फंक्शन और वी हैव टू डिक्लेयर द प्रोटोटाइप, ओके। इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे सम है ना, यहाँ पे अगर वैल्यू दिया हुआ है, सपोज कीजिए लिखा हुआ है 10 और यहाँ लिखा हुआ है 15, ठीक है। तो यहाँ पे सम 10 और 15, दैट मीन्स कि मेन से हमने कॉल कैसा फंक्शन को किया है, सम को, और इसके अंदर पैरामीटर्स कितने हैं, 2 पैरामीटर्स हैं, और दोनों किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि हमें इस फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेते हैं, सपोज कीजिए SUB, ठीक है, सब, और यहाँ लिख देते हैं 15 और यहाँ पे लिख देते हैं 10। तो दैट मीन्स कि सब नाम का एक फंक्शन बनाना होगा आपको अलग से, ठीक है, जिसके अंदर में आपको क्या करना है, वैल्यू को सबट्रैक्ट करना है। लेकिन ये जो फंक्शन है इसके अंदर में पैरामीटर दिया हुआ है ना, पैरामीटर क्या है, 15 और 10, गुड। तो यहाँ पे फंक्शन देखिए बनाते हैं, फिर नीचे बना देते हैं एक बार फंक्शन void SUB सब। अब दोनों जो पैरामीटर्स हैं वो किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं। तो यहाँ लिखेंगे int a, int b, ठीक है, int b। अब यहाँ क्या करना है, अब यहाँ पे होगा क्या कि जैसे ही फंक्शन कॉल होगा, सब 15 और 10 जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो इसको सब में आएगा। यहाँ पे हमने 2 पैरामीटर दिया है, तो 15 किसके अंदर में कॉपी हो जाएगा, ए के अंदर में, और 10 किसके अंदर में कॉपी हो जाएगा, बी के अंदर में। तो 15 और 10 जो है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर, ओके। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर, ओके। एक्चुअल पैरामीटर और दिस इज द फॉर्मल पैरामीटर, क्लियर है। अब फॉर्मल पैरामीटर के अंदर में हमारे पास ए के अंदर में वैल्यू कितनी आ गई, हियर ए इक्वल टू 15 एंड बी इक्वल टू 10, ओके। अब हमें क्या करना है, इसको सबट्रैक्ट करना है। तो सबट्रैक्ट करने के लिए क्या लिख सकते हैं, प्रिंट f/n सब इक्वल टू %3d कॉमा a माइनस b, ओके। और यहाँ पे वैल्यू को यहाँ पे
क्लोज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक फंक्शन आपने बना दिया। पहला जो फंक्शन मैंने सम नाम का बनाया था जिसके अंदर में कोई रिटर्न टाइप नहीं था और कोई पैरामीटर नहीं था, ठीक है। सेकंड जो हमने यहाँ पे जो फंक्शन कॉल किया है इसके अंदर में क्या है, दो वैल्यूज है 15 और 10 और हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हमने एक void सब नाम का फंक्शन बना दिया क्योंकि इसके पास दो पैरामीटर है, तो यहाँ पे भी हमने दो वैल्यू बना दिया, इंट ए इंट बी, ठीक है। ये जो इंट ए और इंट बी है ये डिपेंड करेगा यहाँ इसके डेटा टाइप पे। अगर 15 10 है तो दैट मीन्स कि इसके अंदर में सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप को ही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। दूसरी चीज एक मैंने बताया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर। तो मेन के अंदर से जो भी हम फंक्शन के अंदर में जो पैरामीटर्स भेजेंगे, जो वैल्यू हम भेज रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द एक्चुअल पैरामीटर्स। और जो वैल्यू वहां से जब फंक्शन कॉल करते हैं तो वैल्यू यहाँ पे दो वैल्यू आएगी और वो दोनों वैल्यू क्या होगी, ये भी वेरिएबल के अंदर में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो दैट दिस द वैल्यू ऑफ ए एंड बी विल बी नोन एज द फॉर्मल पैरामीटर, ओके। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर, ये आपको क्लियर हो गया। फॉर्मल पैरामीटर में क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती, उसकी कार्बन कॉपी आ जाती है यहाँ पे, ठीक है, जिसका हम लोग परफॉर्म करके फिर उसको रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम प्रोग्राम को कंपाइल कराएं, कंपाइल कराएंगे तो फिर हमारे पास एक एरर जनरेट करेगा। क्या एरर जनरेट करेगा, वो करेगा void सब के लिए कि सब शुड हैव ए प्रोटोटाइप, क्योंकि मेन के नीचे हमने बनाया ना ये फंक्शन सब, तो उसके लिए हमें अगेन एक प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा। तो प्रोटोटाइप देखिए सर किस तरीके से, ध्यान से देखना है प्रोटोटाइप कैसे बनाते हैं। void फंक्शन का नाम क्या है, सब, ठीक है। और यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो दोनों डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, तो दोनों डेटा टाइप का वैल्यू लिख देंगे, इंट कॉमा इंट। समझ आ रहा है, दैट मींस कि इंट ए इंट भी नहीं लिखना है आपको, क्या लिखना है, जो उसका डेटा टाइप है बस उसको लिख देना है। दैट मींस कि प्रोटोटाइप अगर आपके पास है, इस प्रोटोटाइप को देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि फंक्शन क्या है। फंक्शन का नाम ऑलरेडी मेंशन हो गया, सब, उसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं है और उसके अंदर में जो पैरामीटर्स है उसके दोनों डेटा टाइप क्या है, दैट्स इज अ इंटीजर, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, क्लियर है। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे, यहाँ पे कंपाइल नाउ, देखिए इंटर द वैल्यू ऑफ ए बी 14, सपोज ये 7 21 हो गया। सबट्रैक्ट में वैल्यू क्या दिया था, 10 और 5, तो क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब एक नेक्स्ट वैल्यू और बनाते हैं यहाँ पे, सपोज कीजिए एक बनाते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट एफ मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू %3d और यहाँ पे लिख देते हैं, सपोज कीजिए फंक्शन का नाम रख देते हैं MUL मल और यहाँ पे लिख देते हैं a, दो वैल्यू पास कर देते हैं 8 और यहाँ पे कर देते हैं 5, ठीक है। अब यहाँ पे जो फंक्शन है, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, मल 85 लिखा है, दैट मीन्स कि जो वैल्यू आएगी यहाँ पे उसको यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, दैट मीन्स कि हमें वैल्यू को रिटर्न कराना है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे हमने वैल्यू, बाकी जो दोनों फंक्शंस थे उसकी वैल्यू कहाँ पे प्रिंट हुई थी, उसी फंक्शन के अंदर में प्रिंट कराए थे, क्यों, क्योंकि उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं था। लेकिन यहाँ पे अगर हम वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं, इसका मतलब कि वी हैव टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिकेशन फंक्शन, ओके। अब देखिए इस तरीके के फंक्शन को कैसे बनाएंगे, रिटर्न टाइप है ना यहाँ पे, तो रिटर्न टाइप के लिए किस तरीके का रिटर्न टाइप होगा, जब दोनों आपका वैल्यू इंटीजर है तो आपका रिटर्न टाइप भी क्या होना चाहिए, इंटीजर ही होगा। यहाँ लिख देंगे इंट MUL, ठीक है। डेटा टाइप क्या है आपका, इंट ए, दो इंटीजर है इंट बी, ओके। नाउ printf /n ऐसे लिख सकते हैं सिंपली, रिटर्न इंट सी और यहाँ लिख सकते हैं C इक्वल टू A इंटू बी, ओके, C इक्वल टू A इंटू बी। जैसे ही आप A इंटू बी करेंगे, अब C की वैल्यू को क्या करना है, हमें रिटर्न करना है, यहाँ लिख देंगे रिटर्न और यहाँ लिख देंगे C, ओके ओके। यहाँ पे क्या यूज किया, देखिए रिटर्न C, तो रिटर्न इट इज अ कीवर्ड,
दैट इज यूज टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन टू मेन। अब यहाँ पे जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करेंगे 8 5, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे 8 और 5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सी के अंदर में क्या आ गया, ए इंटू बी, ए के अंदर में वैल्यू क्या आ जाएगी 8 और बी के अंदर में वैल्यू आ जाएगी 5। 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा वैल्यू 40। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी वैल्यू 40 होगा उसको क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू के अंदर में क्या लास्ट में लिखा है, रिटर्न टाइप, इंटीजर रिटर्न टाइप। तो दैट मीन्स वी हैव टू रिटर्न द वैल्यू बाय यूजिंग द कीवर्ड रिटर्न। तो ये रिटर्न होकर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आएगा, और ये सी यहाँ पे आएगा, और इस सी को लेकर के यहाँ पे डिस्प्ले करा देते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे तो फिर एक एरर शो करेगा। क्या, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन को कहाँ पे यूज किया है, मेन के नीचे यूज किया है। ठीक है, तो अगेन वी हैव टू डिक्लेयर void mul, यहाँ लिखेंगे void नहीं है, इंटीजर है ना रिटर्न टाइप, यहाँ लिख देंगे int mul int and int। okay, now compile and run। suppose 12 and 10 वैल्यू आ गया। 5 और 8 का कितना आया था मल्टीप्लाई, 40 आ रहा है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि 3 डिफरेंट अलग अलग तरीके हम लोग फंक्शन को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक और फंक्शन लेते हैं। यहाँ पे 3 है गया। एक हो गया कि सबसे पहले द फंक्शन हैविंग नो एनी पैरामीटर और नो रिटर्न टाइप। सेकंड में फंक्शन हैविंग द पैरामीटर एंड नो रिटर्न टाइप। यहाँ पे द फंक्शन हैविंग पैरामीटर एंड आल्सो रिटर्न टाइप। ओके, एक नया फंक्शन लेते हैं दोबारा, जिसके अंदर में क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप तो होगा, दैट मीन्स रिटर्न टाइप होगा। और सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम लोग कर देते हैं डिवाइड। ठीक है, 2 वैल्यू ले लेते हैं सपोज कीजिए, और वैल्यू आपको नहीं लेना है यहाँ पे। इंट डिव, दैट मीन्स कि यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं है, लेकिन आपका वैल्यू आपका यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो किस तरीके से करेगा देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं फिर printf, वैल्यू रिटर्न करना है ना, तो दैट मीन्स कि हम यहाँ पे वैल्यू को डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं /n डिवीजन इक्वल टू %3d div। सपोज कि यहाँ लिख दिया 10 और यहाँ लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन क्या है, int div। पैरामीटर नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, पैरामीटर्स नहीं देना है ना यहाँ पे int div में, तो यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं देते हैं। ठीक है, तो पैरामीटर्स अगर नहीं देंगे तो हमें कहाँ से लेना पड़ेगा, फंक्शंस के अंदर से। यहीं पे ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं int a, b printf /n enter the value of a and b /t। okay, now scanf %d reference of a रेफरेंस ऑफ बी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, लेकिन डिवाइड करके हमको वैल्यू को रिटर्न करना है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, रिटर्न ए डिवाइडेड बाई बी। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे कोड क्या देखिए, यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं है ना, तो पैरामीटर्स नहीं है तो वैल्यू हमने यहाँ पे ले लिया, और जिसके अंदर में पैरामीटर्स ऑलरेडी थे हम सिंपली कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वैल्यू ले लिया, उसको रिटर्न कर दिया a डिवाइडेड b। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रोग्राम को कंपाइल करना है। कंपाइल करेंगे, एक एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है देखिए, कह रहा है ना फंक्शन प्रिंट शुड हैव ए प्रोटोटाइप। यहाँ पे जो मैंने लिखा है वहाँ पे f आपका स्किप हो गया है, printf लिख दिया। नाउ कंपाइल, नाउ एग्जीक्यूट। वैल्यू दे देते हैं, एक 10 और दूसरा 5। द वैल्यू ऑफ a एंड b डिवाइड के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे 14 कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सपोज कीजिए 7। वैल्यू कितना आना चाहिए, 2 आ गया, डिवीजन का वैल्यू 2।
तो इस तरीके से आपने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स से हम लोग फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा जो पहला फंक्शन था सम का, जिसको हमने किसके थ्रू किया, द फंक्शन हैविंग नो एनी रिटर्न टाइप एंड आल्सो हैविंग नो पैरामीटर। सेकंड सब्सट्रैक्शन किस तरीके से किया, द फंक्शन हैविंग नो एनी रिटर्न टाइप बट आल्सो हैविंग द पैरामीटर। थर्ड जो था वो क्या किया, मल्टीप्लिकेशन का, जिसके अंदर में रिटर्न टाइप भी था, पैरामीटर्स में भी था, और थर्ड में क्या था, रिटर्न था लेकिन पैरामीटर्स नहीं था। चारों डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस हैं, इसको देखने के बाद सिर्फ आपको यही पता चल रहा है कि जो भी आपके फंक्शंस हैं, ठीक है ना, उसके अंदर में जो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक फंक्शन के नेम के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स कि वी कैन डिफरेंशिएट, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, वी कैन डिफरेंशिएट द फंक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स नेम। दूसरा क्या है, रिटर्न टाइप। आपका जो है ना ये लाइट कट रही है, शायद कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो रहा है आपका। ओके, रिटर्न टाइप एंड अरेंजमेंट ऑफ पैरामीटर। ओके, hello. Okay, now we conclude the session. Okay.